Hello, hello students. Good morning. A very happy morning to one and all. Hope you all are safe at home. Okay, so we are again back with the first lesson of science, that is the living and the non-living things. As in the last class, we saw a beautiful story about living and non-living things. Today, we will just have a small recap and then we will proceed with the next topic. So, what are living and non living things? Living things are those which grow, which move on their own, which eat food, and which breathe. Like we human beings, we eat food. अभी अभी को देख लो, जब आप सेकंड स्टैंडर्ड में थे तब आपकी हाइट आपने चेक की होगी. अगर अभी आप चेक करोगे आपकी हाइट, when you see your height now, if you check your height, you will see there is a little bit raise in your height. You are not the same as you were in second standard. Now you have come to the third standard. Now if you see your height will, it must have definitely grown a little bit. So in non-living things, height won't grow. They don't even become thin nor fat. They are as it is. आप आपका वजन भी चेक करते हो. You see your weight also. It last year आपका weight अगर 30 होगा तो अभी definitely either it will raise or it will become less. एक ज्यादा तो होगा नहीं तो कम तो हो जाएगा. अभी तो लॉकडाउन है, सब लोग घर पे ही हो, सब लोग रोज टाइम टू टाइम खा रहे हो. एक्सरसाइज करते होंगे कि नहीं करते होंगे पता नहीं, लेकिन अगर नहीं करते होंगे तो ऑब्वियसली आपका वेट बड़ा ही होगा. मीन्स यू मस्ट हैव गेन योर वेट. सो दीज आर द थिंग्स. लिविंग थिंग्स में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है. मतलब वो ग्रो होते हैं, उनका वजन, देन दे मूव ऑन देयर ओन, वो खुद से चलते जाते हैं. अभी आपको आप मान लो आपको अगर कहीं पे जाना है, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम योर बेडरूम टू द लिविंग रूम, you'll go on your own, isn't it? Is there anyone who will come and take you and put you in the living room from the bedroom? नहीं ना, ऐसे नहीं होता है ना. आप खुद होके जाते हो. तो नॉन लिविंग थिंग्स में वो मूव नहीं करते हैं. लिविंग थिंग्स गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे मूव होते हैं. तो उसके बाद में दे ग्रो, दे ईट. आप खाना खाते हो ना, आपके अगर टॉय को अगर मैंने खाना खिलाया तो वो क्या खाएगा? नहीं खाएगा. isn't it? So they living things eat food, they don't eat their food. Next, they breathe. अगर हम लोगों ने ब्रीथ नहीं किया तो हम क्या हो जाएंगे? हमको वी विल गेट सफोकेटेड. लेकिन टॉयज में ऐसा नहीं होता है. नॉन लिविंग थिंग्स में उनको ब्रीथ करने की कोई मतलब वो ब्रीथ ही नहीं करते हैं. दे डोंट ब्रीथ, वी ब्रीथ, दे डोंट ब्रीथ. अब ये था लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था. इन लास्ट वीडियो वी हैड डन दिस. नाउ in this video I will segregate what are living things and non living things. और उसमें भी और भी बातें हैं, जैसे कि natural living things और natural non living things और मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. अब ये मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है और ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, मैं ये आपको बताऊंगी. तो you know what are natural non living things? जैसे कि water, जैसे कि sun. This is sun na? Beautiful. Yes. Then what is this? This is a moon. This is also a natural non living thing क्योंकि ये breathe नहीं करते. Isn't it? Do they breathe? No, they don't breathe. Water also does not breathe. Then stones, these also does not breathe. तो ये क्या हो गए हैं? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. इनको नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स क्यों कहते हैं पता है आपको? व्हाई दे कॉल देम एज नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स? बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर. दीज ऑल थिंग्स वी गेट फ्रॉम द नेचर. ये सारे जो भी चीजें हैं हमको नेचर से मिली हुई है. Isn't it? ये ऑलरेडी कहाँ पे है? यहाँ पे किसी मैन ने इनको नहीं बनाया है. अभी मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? जैसे कि दिस इज अ पपी.
This is a toy, isn't it? This is a non-living thing, but इसको किसने बनाया है? This is made by the human. See, I'll show you many toys. This is a frog, isn't it? Now I'll show you a mouse also. This is the computer mouse, isn't it? जैसे हम लोग अभी वीडियो में बात कर रहे हैं, ये भी जो कंप्यूटर है ये भी मैन ने बनाया है. This is also a non-living thing. Then the most important thing, your books. Book is also a non-living thing which is made by the man. ये सारी चीजें मनुष्य ने बनाई हुई है ना? तो ये क्या हो गए हैं? ह्यूमन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. अभी ह्यूमन को तो लिविंग थिंग बनाने के लिए आता ही नहीं है, तो लिविंग थिंग्स कौन बनाता है? सारा वी विल गेट इट फ्रॉम द नेचर एंड वी. ओके, हमको भी गॉड ने बनाया है. द क्रिएटर ऑफ आवर्स इज गॉड, इजंट इट? So we are living things. The man cannot do any living things. वो कुछ भी produce मतलब non living thing नहीं बना सकते हैं. Now I'll tell you one more living thing. Okay, जैसे मैंने बोला आपको कि living thing जो है वो खुद से move करता है, लेकिन ऐसे सारी चीज़ों में नहीं होता है. जैसे कि plants. In plants do not move, but they are living thing. अब इसी को लीजिए. What is this? Can you see this? This is a flower. This is also a living thing. लेकिन आपको पता है flowers में भी बहुत सारे varieties होते हैं. अब these flowers, you know, these flowers, even if you pluck it from the plant, they stay for 1 or 2 days. But ऐसे सारे flowers नहीं होते हैं. कई flowers ऐसे होते हैं. Some flowers are like this. If you pluck it from the plant, or even though if you do not pluck it from the plant, they die until the evening. Evening तक वो मर जाते हैं, मतलब वो मुरझा जाते हैं. ओके, मुरझा जाते हैं मतलब पूरा वो ऐसे हो जाते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग. देन दिस इज अ रोज. सबको पसंद है रोज, इजंट इट? इजंट इट रोज? तो ये भी एक लिविंग थिंग है. तो सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने जैसे बोला कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग है, लेकिन वो खुद से चलते नहीं है. लेकिन उनमें, in those plants you can see some movements. Now what are these movements in living things that do into plant which do not move on their own? but कभी कभी देखा है आपने, जैसे कि हवा आती है, when the breeze or the wind blows, what happens? The tree or the plant shake, isn't it? तो कुछ तो मूवमेंट हो रही है. नाउ as I told you, as I showed you this flower, ये फ्लावर होने से पहले क्या था? एक बड था. आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, तो आपने बड पढ़ा ही होगा. बड क्या होता है? I'll just show you here. बड मतलब जो फ्लावर से पहले छोटा सा ऐसे आता है ना, दिस इज अ बड. फूल होने से पहले जो रहता है दैट इज अ बड. उसके बाद में स्लोली इट विल ब्लूम इनटू अ फ्लावर. ऐसे इट विल ब्लूम इनटू अ फ्लावर. तो हो गया ना, बड से पहले वो छोटा सा बड होता है, बाद में थोड़ा सा ब्लूम होता है, एंड देन इट विल बिकम अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इजंट इट? तो दैट इज आल्सो अ मूवमेंट इन द प्लांट. सो खुद की मूवमेंट दिखा रहा है. अब मुझे बताइए, आपने कभी भी प्लांट किया होगा, तो पहले वो छोटा था, बाद में धीरे धीरे बड़ा होने के बाद में उसको बढ़ाया छोटा सा, बाद में फ्लावर आ गया, है ना? तो उसमें भी कुछ मूवमेंट्स होते हैं. इवन द प्लांट इज शोइंग सम मूवमेंट इनटू द इन इट्स सेल्फ. नाउ अभी और एक बात बताती हूँ. आई विल शो यू वन मोर थिंग. डू यू नो व्हाट इज दिस? आई विल जस्ट शो यू. आई जस्ट कम फॉरवर्ड. सी दिस. ओके, इज इट लाइक दिस? ओके, ये क्या है पता है? इसे कहते हैं टच मी नॉट. ये टच मी नॉट क्या है? दिस इज अ प्लांट. यू कैन फाइंड इट एनीवेयर. आपको ये कहीं पर भी दिखेगा. आप अगर आप गार्डन में जा रहे हो, इवन ऑन द रोड्स आल्सो यू फाइंड दिस टच मी नॉट प्लांट. यू नो, ये मैं आपको एक मैजिक दिखाती हूँ. ये सारा पता है, मुझे पता है, सबको पता है. नाउ यू जस्ट सी द लीव्स. ओके, इसके लीव्स सारे ओपन है. नाउ एज आई टच दिस, ये देखो क्या हो गया है. कैन यू सी व्हाट हैपेंड टू द प्लांट? क्या हो गया प्लांट को? वो एकदम से ये हो गया, तो अपने हाथ हो गया था. तो दिस इज ऑल्सो अ
मूवमेंट इन द प्लांट, ओके, जैसे ही मतलब इसको फील हो रहा है, इजंट इट? बट अगर ये डॉग है, इसे अगर मैं टच करूंगी तो इसे फील हो रहा है? नो, बट आई एम फीलिंग दैट आई एम टचिंग द टॉय, दिस इज अ टॉय, इजंट इट टॉय पपी? तो आई एम टचिंग, तो मुझे फील हो रहा है। बट यहाँ पे व्हेन आई टच दिस ना, अभी ये 1 आवर के बाद में देखोगे, अभी थोड़ी देर के बाद में, आफ्टर यू सी 1 आवर, आफ्टर सम टाइम यू विल सी अगेन द लीव्स विल ओपन, अगेन द लीव्स विल ओपन, एंड देन अगेन इफ यू टच इट, फिर से अगर आपने उसे टच किया तो क्या हो जाएगा, फिर से वो बंद हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट लिविंग थिंग्स कंटेन, मतलब लिविंग थिंग्स का वो एविडेंस दिखा रहा है, अपना प्रूफ दिखा रहा है कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीता जाता हूँ। अभी ये मैंने ऐसे ही व्हाट आई डिड, यू नो, आई जस्ट plucked it, means I just uprooted it, मतलब इसको मैंने ऐसे ही निकाला था। अभी मैं वापस जाके ऐसे लगाऊंगी तो ये फिर से मतलब सॉइल में, again if I put it into the soil, again it will grow. So this is what is living things and non living things. आज जैसे मैंने बताया आपको, ये फील करता है। तो इन लिविंग थिंग्स देर आर सेंस ऑर्गन्स, मतलब सारे लिविंग बींग्स में नहीं, जैसे कि प्लांट्स में, ये इसमें भी सेंस और सेंस है। जैसे ही मैंने इसको टच किया, इसको फील होके वो बंद हो गया। तो वैसे ही इन ह्यूमन बींग्स इवन वी हैव सेंस ऑर्गन्स। आपने पढ़ा होगा सेंस ऑर्गन्स कितने हैं हमारे, 5 सेंस ऑर्गन्स। देयर आर हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स है हमको। कितने हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से है? स्मेल कर रही हूँ, अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस इन रोज, दैट इज वेरी नाइस सेंटेड रोज, यू नो, तो इसको मैं स्मेल कर रही हूँ, आई एम स्मेलिंग दिस, ओके। तो दिस इज इसका जो फ्रेग्रेंस है, आई कैन स्मेल इट, सो दिस इज माई सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन मतलब जिसे आप फील कर सकते हो, देन आई एम स्मेलिंग इट, तो दिस इज नोज इज अ sense organs. Then my eyes which I am able to see this, मैं इसको देख पा रही हूँ, I am looking at the flower, so my sense है वो, मैं मतलब उसको देख के फील कर सकती हूँ, तो eyes are the sense organ. उसके बाद में whatever I am talking to you, I can hear, so this is also a sense organ. उसके बाद में I can touch it, मैं इसको फील कर रही हूँ, कैसे है, इसके पेटल्स कितने सॉफ्ट है, सो गुड इट इज, मतलब कितने सॉफ्ट सॉफ्ट है इसके पेटल्स, तो आई एम फीलिंग, सो स्किन इज अ सेंस ऑर्गन। उसके बाद में स्किन हो गया है, नोज हो गया है, ईयर्स हो गया है, आईज हो गया है। एंड आपको पता है एक बात, ये जो रोज है, इसको धूप में सुखाने के बाद में थोड़ा सा शक्कर डालने के बाद में इसका गुलकंद बनता है, यू नो। if you take these rose petals, okay, petals of the rose, and if you put little bit of sugar into that, what will happen, you know, iska you will get a gulkand, okay। gulkand जो है अभी समर सीजन्स में if you eat, it is very good, because जो हीट होती है हमारी बॉडी की, उसको वो रिड्यूस करता है। सो when I taste that gulkand with my tongue, what will happen, उसका टेस्ट मुझे समझ में आता है। तो even the tongue is our sense organ. So सारे मिला के 5 हो गए, 5 sense organs, which are those? Ears, eyes, nose, tongue and your skin, which you can फील। तो ये हो गए हमारे सेंस ऑर्गन्स। ये सेंस ऑर्गन्स, सारे सेंस ऑर्गन्स सारे लिविंग बींग्स में नहीं होते हैं, लेकिन वी एज अ ह्यूमन वी आर स्पेशल टू गॉड, सो वी हैव दीज ऑल सेंस ऑर्गन्स। जैसे मैंने दिखाया प्लांट्स में कौन सा सेंस ऑर्गन्स होता है, जैसे मैंने इसको टच किया, इसने क्या किया, अपने आप को ऐसे, अपने लीव्स को ऐसे बंद कर दिया, ये शर्मा गया, इजंट इट? सो दिस इज कॉल्ड एज टच मी नॉट प्लांट। तो इसमें से वो वाला सेंस है। Now these are the sense organs, okay। तो आपके बुक में बहुत सारी बातें दी गई है, तो मैं छोटा छोटा करके आपको कुछ बताऊंगी। जैसे कि मैंने बताया हाउ डू आई ब्रीथ, हम कैसे ब्रीथ करते हैं, थ्रू आवर नोज, इनहेल एक्सहेल, इजंट इट? प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं, डू यू नो? अब मैं बताती हूँ। ये जो लीफ है ना, इसके ऊपर छोटे 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 पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं,
ओके, वो ऐसे ही दिखते नहीं हैं हम लोगों को, उसे मैग्नीफाइंग ग्लास लगती है जो हमारे स्कूल के लैब, साइंस लैब में है। जब आप आओगे ना वापस तो मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस यू नो, in this plants there are small pores, like जैसे किडनी रहता है ना, you know the kidney, कैसे किडनी रहता है ना, ऐसे वाला, ऐसे छोटे 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 पोर्स रहते हैं, तो उसे कहते हैं स्टोमेटा। उसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये लीव्स में लीव्स पे ये स्टोमेटा होता है, जो होल्स है जो अपनी आई से नहीं दिखता है, वो कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस से दिखते हैं। तो वी कैन सी देम टू द मैग्नीफाइंग ग्लासेस lenses. So this stomata, so the plants breathe through the stomato. हम कैसे नोज से ब्रीथ करते हैं वैसे ही वी ब्रीथ थ्रू द नोज, बट these plants breathe through the stomata present on the leaves. ये हो गया प्लांट्स ऐसे ब्रीथ करते हैं। देन वी ब्रीथ थ्रू द नोज। ये पता है क्या है? आई डिडंट हैव अ फिश। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ ब्यूटीफुल फिश। ये जो हमारे ड्राइंग सर है ना, इन्होंने बनाया है ये फिश। तो ये जो फिशेस है, दीज फिश ब्रीथ थ्रू द गिल्स, दे ब्रीथ थ्रू द गिल्स। ओके, उनके पास भी दे डोंट ब्रीथ थ्रू द नोज, दे डोंट ब्रीथ थ्रू द स्टोमेटा, दे ब्रीथ थ्रू द गिल्स। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। when you come to the higher grades, like अभी आप थर्ड स्टैंडर्ड में हो, बाद में आप फोर्थ में जाओगे, that time you will come to know many things. It is science is a very interesting thing, is a interesting subject. Okay, तो हम लोग ये सारी बातें जो भी है हम पढ़ेंगे। तो what you have to do is now आप यू ओके, गार्डन होगा आपके घर के सामने, अगर नहीं है तो इवन दो इफ यू गो लिटिल बिट फार यू कैन सी मेनी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो व्हाट यू डू, टेक अ पेपर, एक पे लिखो लिविंग थिंग्स, एक पे लिखो नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी देखा है वट एवर यू सी, ऑब्जर्व हाउ मेनी लिविंग थिंग्स एंड हाउ मेनी नॉन लिविंग थिंग्स, यू कैन जस्ट put it down. Okay, so let's meet with the new topic in the next class. Till then, thank you and have a nice day.